ادائیگی فرض کے جذبہ میں سرشار پولیس جوان بھرے بازار گشت میں ہو یا کہیں اندھیروں میں ڈوبی کسی بدنام گروہ کی کمین گاہ پر چھاپا زن ہو، ہر گھڑی پولیس افسر اور جوان خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ آج ہم غازیوں کے ساتھ ہیں۔ لاہور پولیس کے غازی جوان کی سٹوری کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بڑی دکھ بھری اور تکلیف دہ یہ سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے پیاروں سے تو جو پیار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے پیاروں کے لیے خدمت کرتے کرتے جب ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جانوں گا، میرے ساتھ غازی جوان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ یہ آپ ویل چیئر پر کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیبل طارق محمود۔ سر ہم لاہور پولیس سے بلانگ کرتے ہیں۔ گلشن راوی کے علاقے میں ایک پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا 2007 میں۔ اچھا۔ 15 پہ کال پہ گئے تھے ہم، وہاں ہم نے ڈاکو پکڑے اور ایک ڈاکو نے نا اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے اوپر فائرنگ کر دی، اور الحمدللہ ہم نے وہ ڈاکو پکڑے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ جو ہم نے اپنا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، کہ ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اللہ پاک نے ہمیں اس وعدے پہ کامیاب کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ میں اور میرا ڈپارٹمنٹ پرعزم ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ اب بھی اور آئندہ بھی اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا دوبارہ اس قوم کی خدمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، تو ہمارا جذبہ جو کل تھا آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہی جذبے کے ساتھ اس ملک اور اس قوم کی خدمت کرتے ہی رہیں۔ 2007 میں پولیس مقابلہ ہوتا ہے۔ جی سر۔ تقریباً 14 سال سے آپ ویل چیئر پر ہیں۔ جی میں محکمہ پولیس نے آپ کے لیے کیا کیا؟ سر میرا محکمہ، میرا ڈپارٹمنٹ میرے لیے فخر ہے، اور مجھے ہر لمحہ سپورٹ کر رہا ہے۔ میرے لیے جو بھی میرے مسائل ہیں وہ میرا ڈپارٹمنٹ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے اس کے حل کے لیے۔ جب آپ کو 15 پر اطلاع ملتی ہے کہ ڈاکو آ گئے ہیں، شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچتے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچنے پر ڈاکوؤں کی طرف سے فائرنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جی۔ آپ نے بھی فائرنگ کی؟ آپ سر کو فائر کہاں لگا؟ ہم نے جب موقع واردات پہ پہنچے تو رات کی تاریکی کا وقت 11:15 بجے کا ٹائم تھا جب ہم پہنچے ادھر، تو ہم نے جاتے ہی ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، ان سے اسلحہ بھی ہم نے چھین لیا، مال مسروقہ بھی چھین لیا۔ ایک ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑے سے ڈسٹینس پہ کھڑا تھا، اس کو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ میرے ساتھی اب جو ہے نا وہ پولیس کی حراست میں آ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے اوپر فائرنگ کر دی۔ ٹھیک ہے۔ بٹن کھولیں۔ یہ سر یہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، یہ سامنے میرے بلٹس لگی ہے۔ یہ بلٹس لگی ہیں؟ یہ بلٹس۔ کتنی بلٹس لگی تھی آپ کی؟ یہ ایک بلٹس لگی ہے، اور اوپر یہ سرجری ہوئی ہے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے تحفظ کے لیے یہ سڑکوں پر آپ کے تحفظ کے دعوے دار بھی ہیں اور گولی بھی گلے میں کھا چکے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ معذور ہو چکے ہیں، ویل چیئر پر ہیں۔ محکمہ پولیس ان کے لیے ویلفیئر کے لیے بہت سے اقدامات کرتے ہیں، لیکن یہ اب کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ تکلیف دہ عمل پھر ہم پولیس کو تنقید تو فوری کر دیتے ہیں کہ پولیس رشوت خور ہے، پولیس کرمنل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ جوان دیکھ سکتے ہیں کہ زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد 14 سال گزر چکے ہیں، ویل چیئر پر ہے، جو اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا اب گھر والوں کے پاس بیٹھ کر وہ اس کی کفالت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بڑی دردناک سٹوری تھی، اور آگے چلتے بات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سٹک پکڑی ہوئی ہے، کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ سر یہ پولیس مقابلے میں فائر لگا مجھے۔ پولیس مقابلے میں؟ جی بالکل۔ آپ کا رینک کیا ہے؟ کہاں ڈیوٹی کر رہے تھے؟ کون سا ایئر تھا؟ سر میں ڈولفن اسکواڈ کا جوان ہوں، اور یہ جو ہے نا 9 مئی 2021 کو یہ 27ویں کی رات تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا جب یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔
कैसे मुकाबला हुआ? आपको पता था डाकू हैं यहाँ पे, या डाकुओं को पता चला पुलिस यहाँ पर है तो उनको भगाने के लिए कोई इकदाम उठाना पड़ा उनको? जी सर, 15 पे कॉल चली है, डकैती हो रही है, हाउस रॉबरी हो रही है। ठीक है, तो हम जो है ना कॉल के लिए मूव किया हमने। आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। तो हम सर्च आउट कर रहे हैं, अभी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं था। तो चलती बाइक पे जो है ना, चलती बाइक पे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने हमें देख लिया। के बाद फरार हो रहे थे? जी बिल्कुल, कुछ लोग उनके बाहर खड़े थे, फरार नहीं हो रहे थे, अभी लूट मार कर रहे थे, अंदर डकैती कर रहे थे। घर के अंदर कुछ लोग थे, कुछ बाहर थे। ठीक है। और उन्होंने हमें आते देखा तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मैं और मेरा ये साथी जवाद जो है ना, ये बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो दोनों को जो है ना, पहले जवाद को फायर लगा है, तो इसकी वजह से बाइक एक तो मिसबैलेंस हो गई, और दूसरा वो तकरीबन 5 से 6 लोग थे जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। कुछ बुलेट्स राइफ़ल की लगी हैं, पिस्टल की है, और उसके अलावा जो है ना पंप एक्शन, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पास जो है ना असला था। तो डाकुओं को आपने देखा? जी बिल्कुल, अंधेरा था, लेकिन याद थे? जी हल्के फुल्के याद थे बिल्कुल। पकड़े गए हैं? जी पकड़े गए। मार भी दिए गए? नहीं, फ़िलहाल तो इस चीज़ का हमें नहीं, लेकिन पकड़े गए हैं। पकड़े गए थे? जी बिल्कुल। उसी दौरान पकड़े गए थे या कुछ दिनों बाद पकड़े गए? बाद में, उस वक्त तो वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागे थे। ठीक है, कितने लोग थे वो जो फायरिंग कर रहे थे वो तकरीबन 5 से 6 थे, और जो जिस घर में डकैती हुई थी उस घर का जो मेंबर है उसने बताया कि 7 लोग अंदर जो है ना वो डकैती कर रहे थे, यानी कि कुल मिला के 12-13 लोग थे। 12-13 डाकू एक शहरी के घर पर चले जाते हैं, फिर वहां जाकर वारदात करते हैं। वारदात के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो डाकुओं की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। डाकुओं की तरफ से फायरिंग का अमल शुरू होना, और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती है। हिफाजती इकदाम बरोए कार लाए जाते हैं। आपको हिफाजती जैकेट या कोई ऐसे हिफाजती इकदाम तो नहीं आपने उठा रखे थे, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? आप तो 15 की कॉल पे गए। लेकिन हिफाजती इकदाम को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। लेकिन डाकुओं की फायरिंग से ये आज हमारे साथ पुलिस का गाजी जवान बैठे हुए हैं, और ये भी आप देख सकते हैं इनके साथी हैं। ये दोनों डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार हैं, और वारदात को नाकाम बनाने के लिए, डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौका पर पहुंचे, लेकिन गोलियों का निशाना बन गए डाकुओं की तरफ से। आपकी तरफ से फायरिंग हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। जब बाइक में चला रहा था पहला फायर मुझे लगा है, जो बाइक अनबैलेंस होकर गिर गई है। उसके बाद हम पे फायरिंग हो रही थी, मैं बाइक के साथ ही जो लेट के आड़ ले के बाइक की, तो मैंने जो 14 फायर किए वक्फे से, उनको ये फील करवाया कि अभी हम जो है ना ठीक है, हमने अपना जज्बा जो है ना कायम है अपने जज्बे पे। तो फायरिंग हमने भी आगे से की है। फिर जो घर से बाहर निकलते हैं दूसरे उनके साथी, जब उनको पता चला कि बाहर फायरिंग शुरू हो गई है तो उन्होंने सारा कुछ उधर छोड़ दिया है, मतलब वारदात बिल्कुल नाकाम हो गया है और वो फरार हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया था, देहाती एरिया था, खेत थे, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो फरार हो गए उधर से। तो उस दौरान मुझे जो है 6 फायर जो है ना मेरे लगी हैं। कहाँ लगे फायर आप? 2 मेरी टांग पे हैं। दिखाए हैं? ये इधर से लगी ये कैमरामैन दिखाए, ये फायर लगा है, डाकुओं की तरफ से फायर हुआ है, और ये इधर से, और ये हमारे मुहाफिज हैं, डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार हैं, अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर ड्यूटी पर मौजूद थे। और जब वारदात होती है तो वारदात में डाकुओं की तरफ से फायरिंग का अमल शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन पुलिस जो कि हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार है और हमारे दरमियान मौजूद रहती है, और हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर मौजूद भी दिखाई देती है। गश्त की सूरत हाल को भी बेहतर बनाया जाता है। लेकिन जराइम पेश अफराद जब पुलिस के हाथों मारे जाते हैं तो फिर पुलिस पर तनकीद होती है कि पुलिस ने एक ऐसे शख्स की, एक इंसान की जान ले ली। लेकिन जब उनकी तरफ से फायरिंग का अमल शुरू होता है और कई पुलिस के जवान शहीद भी हो चुके हैं, कई ज़ख्मी हो चुके हैं, क्रिमिनल्स की तरफ से फायरिंग का अमल शुरू होना, और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो बम धमाके में भी दहशतगर्दों के तरफ से भी हमले होते हैं, और फिर पुलिस जवान शहीद भी हो जाते हैं, और कुछ गाजी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बम धमाके में जो ज़ख्मी हुए हैं, आप बम धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, आप इधर आए मेरे पास। अमीन साहब, बम धमाका कहाँ हुआ था और आप कितने मुतासिर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्च 2018 की बात है।
मैं सुंदर तैनात था और ड्यूटी इज्तिमा रेवेन्यू इज्तिमा पे थी। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमारा पुलिस कैंप था। उधर नफरी थी, एएसपी साहब ज़ुबैर थे, एएसपी साहब रायमंड, उन्होंने ब्रीफ करना था तमाम नफरी को। तो खुदकश ने वो मौका तलाश किया, अभी मैं नफरी पे ज़्यादा से ज़्यादा खुदकश हमला करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनका नुकसान करूँगा। लेकिन आगे हम खड़े हुए थे, जब वो आगे ना पहुँच सका तो वहीं पे उसने फिर अपना खुदकश धमाका कर दिया। धमाके में कितने पुलिस जवान शहीद हुए, कितने जख्मी हुए? 7 के करीब शहीद हुए थे, उसमें कोई प्राइवेट लोग भी शहीद हुए थे जो इज्तिमा में शिरकत की थी जिन्होंने। लेकिन अल्लाह का करम ये था कि उस वक्त ना इशा की नमाज हो रही थी, वो जो प्राइवेट लोग थे वो कम थे, हमारी नफरी ज़्यादा थी और 7 जवान हमारे शहीद हुए थे। मैं भी बिल्कुल करीब था, यहाँ पे खुद का धमाका हुआ था, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी हुई, मैं ज़ख्मी हुआ था। आपके साथ कितने जो साथी थे वो भी जख्मी हुए थे? मेरे साथ तकरीबन 6-7 और ज़ख्मी हुए थे। 6-7 और जख्मी हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अब पुरज़ में? हाँ बिल्कुल, पुरज़ भी ड्यूटी करेंगे? मैंने उसके बाद 19 में भी ड्यूटी की, इज्तिमा की, 20 में भी की है, अभी भी की है। अच्छा, डरे नहीं? नहीं, डरे नहीं। सब इंस्पेक्टर अमीन साहब हमारे साथ हैं, इनके हौसले बुलंद हैं, इनके हौसले पस्त नहीं हुए। जहाँ जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, जो दहशतगर्द रायमंड इज्तिमा में जो शिरकत करने वालों को मुतासिर करना चाहते थे, खुदकश बमबार आया और फिर अपने आप को खुद को उड़ा लिया, तो मोहम्मद अमीन साहब भी वहाँ पर पाए जा रहे थे और ज़ख्मी हुए थे। इनके 7 साथी शहीद हुए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए थे। अमीन साहब अब आपके सामने है, इनके जो हौसला है वो मैं बहुत मुतासिर हो रहा हूँ कि फिर इन्होंने वहीं पे ड्यूटी की जहाँ पर धमाका हुआ था, वहीं पे 2018 में भी की, 2019 में भी की, 2020 में भी की, ये अब 2021 का चल रहा है, यहाँ पे भी इज्तिमा हुआ है। 2021 में भी गए? वो मार्च में हुआ था, अभी भी की है ड्यूटी इधर, अभी भी की है? अभी भी की है। मेरे साथ एक और पुलिस जवान मौजूद हैं जो पुलिस इनकाउंटर में ज़ख्मी हो गए थे। वकार इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, क्या हुआ था वो सारा मुझे बताएं कि आपको गोली कैसे लगी? सर, फरवरी 2019 में ट्रिपल मर्डर का इश्तिहारी था। ट्रिपल मर्डर का इश्तिहारी था? थोड़ा सा लाउड बोलिए। ट्रिपल मर्डर का मुल्ज़म था। एसएचओ साहब की इन्फॉर्मेशन पे हम उधर गए, हमारा एसएचओ साहब फैक्ट्रिया थाना के इलाका में। ठीक है। जब उधर गए तो उसने हम पे सीधी फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है। जिसमें मेरे एसएचओ साहब भी ज़ख्मी हुए, मैं और मेरे 2 साथी और ज़ख्मी हुए। मुझे फायर लगा ये आँख में, इस जगह पे आँख में लगा, जिससे मेरी आँख ज़ाया हो गई और मेरा अब आपको एक आँख से नज़र आता है, एक आँख से नहीं नज़र आता है। जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, खाने पीने में भी दुश्वारी है। वो उधर ही पुलिस मुकाबला हुआ तो उसमें एसएचओ साहब की टांग फ्रैक्चर हुई थी और मेरे साथी ज़ख्मी हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सलामत हैं अभी। तो जो इश्तिहारी था, वो जो मुल्ज़म था वो तो मारा गया था ना पुलिस मुकाबले में मारा गया। जी, मारा गया। जो पुलिस पर फायरिंग करेगा वो बच नहीं पाता, उधर ही मारा गया। तो पीछे से बैकअप दूसरे साथी आ गए तो डराने पे फायरिंग, फिर वो मारा गया उधर ही। आपको कैसे पता चला यहाँ पर इश्तिहारी मौजूद है? फिर आप अपनी टीम के साथ एसएचओ के हमरा मौके पर गए? एसएचओ थे अतीक डुगर साहब, उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन थी कि मुल्ज़म उधर ट्रिपल मीटर का मौजूद है, उसको पकड़ने के लिए हम गए थे। वो ऊपर अंधेरे में छुपा हुआ था, उसने अंधेरे में फायरिंग कर दी। आपकी आंख ज़ाया हो गई है? जी, ज़ाया हो गई। दुख तो नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं, कोई नहीं। महकमे ने बहुत सपोर्ट किया है, महकमा पुलिस ने सपोर्ट किया है और आप जो अदायगी फर्ज के लिए अभी भी तैयार हैं, हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद हैं हमारे, पूरा अज़म है इंशाल्लाह इस अवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हैं 24 घंटे। अवाम की खिदमत के लिए पुलिस जवान के ये गाजी हाजिर हैं और हमें भी पुलिस के साथ ताउन करना होगा और क्रिमिनल पर नज़र रखनी होगी। जो भी क्रिमिनल होता है उसकी इत्तला भी पुलिस को देनी होगी, लेकिन हम बदकिस्मती से क्रिमिनल के साथ मिल जाते हैं। छोटे से थोड़े से पैसों के लिए हम अपने मुल्क को, अपनी पुलिस को बेच देते हैं और हमारे पुलिस के जवान क्रिमिनल्स के हाथों ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं। शहीद का रुतबा, गाजी का रुतबा मेरे ख्याल से दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि आप गए हैं तो फिर जान की परवाह किए बगैर गए हैं
वहाँ पर फायरिंग हो जाती है और फिर आपको गोली लग जाती है, इनकी आंख भी ज़ाया हो जाती है। दर्द भरी कहानियाँ आपके सामने हैं और बड़ा दुख होता है कि हमारे मुहाफ़िज़ हमारे लिए सड़कों पर होते हैं, लेकिन हम इनके साथ तामुन नहीं करते। इनके साथ जो SHO थे अतीक डोगर, जब फैक्ट्री एरिया में वो SHO थे, उनसे भी बात करते हैं। पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी होने वाले वकार के जो SHO थे, SHO थाना फैक्ट्री एरिया में, अब तो ये पुलिस लाइन में है। जब ये फैक्ट्री एरिया में थे तो ट्रिपल मर्डर का जो इश्तिहारी था उसकी गिरफ्तारी के लिए ये अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचते हैं तो इन पर फायरिंग हो जाती है। SHO साहब, वो आखिर वाक़या क्या हुआ था? आपके साथ कितने पुलिस एहलकार थे और ट्रिपल मर्डर का इश्तिहारी कहाँ से पकड़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी 2019 में एक रात इंसिडेंट होता है कि एक बंदा 3 लोगों को मर्डर करता है, एक ही फैमिली के, जिनमें एक छोटा बच्चा भी होता है, एक खातून और एक मर्द। उसके बाद पुलिस को इत्तला मिलती है, उस इत्तला पे हम उसकी अरेस्ट करने पहुंचते हैं और उस दौरान फिर वो फायरिंग करता है पुलिस पार्टी पे। उस फायरिंग में फिर मुझे भी फायर लगता है लेफ़्ट आंख में मेरी पे, और वो कांस्टेबल वकार है उसकी आंख में फायर लगता है, शदीद ज़ख्मी होते हैं। उसी इनकाउंटर में फिर वो मारा जाता है और मार गिराया जाता है। जी, ठीक है, कामयाब हो जाती है पुलिस अपने मकसद में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह ये वो क्रिमिनल पे रेड के दौरान पुलिस पार्टी पे फायरिंग हुई और फायरिंग में फिर हम लोग ज़ख्मी हुए थे। ठीक है, तो वेलफेयर के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं पुलिस की तरफ से? कोई उनका ख्याल रखा जाता है, उनको फाइनेंशियली भी जी फैसिलिटेट किया जाता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग ज़ख्मी हुए थे पुलिस एनकाउंटर में तो उस वक़्त यही मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब जो थे, यही SSP ऑपरेशन थे 2019 में। तो आप भी वो 2021 में अभी SSP भी वो ऑपरेशन? है। और उस वक़्त जनरल हॉस्पिटल में वो सुबह शाम हमारे पास आते थे, हमारे पास आके पूरा हमारा ख्याल करते थे। और जो IG पंजाब इस वक्त हैं राव सरदार साहब, ये उस वक्त एडिशनल IG वेलफेयर थे और इन्होंने भी पूरा हमारा पूरी वेलफेयर का ख्याल किया और पूरा हम लोगों को 40 लाख रुपया रिवार्ड दिया था इन्होंने। कितने पुलिस जवानों को? टोटल हम 4 थे मेरे समेत। कितने लाख दिए? 40 लाख रुपये। 40 लाख दिया। एक एहलकार को 10 लाख रुपया दिया गया। जी। जो अब मौजूदा IG हैं राव सरदार अली खान, वो तब एडिशनल IG फाइनेंस थे, वेलफेयर एंड फाइनेंस। तो फिर जो गाजी थे उनको इनाम के तौर पर पैसे भी दिए गए क्योंकि इन्होंने जानों की परवाह ना करते हुए एक ट्रिपल मर्डर इश्तिहारी को फायरिंग करते हुए मार डाला था। तो सर, फिर SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़िरोज़ की तरफ आ जाते हैं। ये 2019 में भी SSP ऑपरेशन थे, 2021 में भी SSP ऑपरेशन हैं। जो मैं देखता हूँ, जब आपने बताया कि तब वो आते थे या अब दोबारा वो आए हैं तो उन्होंने दोबारा गाजी एहलकारों को बुला लिया है, तो ये मोहब्बत सिर्फ SSP मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब को है या किसी और पुलिस अफसर को भी है? जी बिल्कुल ऐसी है। सर मुस्तनसर ने उस वक्त भी हमारा तो बहुत ख्याल किया था। मुझे याद है कि जी हॉस्पिटल में डेली दिन में 2 दफ़ा आते थे हमारे पास। अब भी बुलाया हुआ है और अभी भी उन्होंने बुलाया। सर एहसन यूनुस साहब ने बुलाया। उन्होंने उनकी इन सब की हौसला अफजाई के लिए जितने ज़ख्मी हैं पुलिस मुकाबलों में, बम धमाकों में, उनकी फैमिलीज़ को उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। सीनियर्स को ये ऐसा करना चाहिए। ये सब लोग पुलिस की ड्यूटी के दौरान ही ज़ख्मी हुए हैं। बिल्कुल, गाजी पुलिस जवानों से हमारी बात चलती रहेगी। एक और साथी पुलिस जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ अब्बास साहब भी साथ हैं। अब्बास साहब, आप बताइएगा, आप गाजी हैं, किस केस में आप गए बाहर? जी अस्सलाम वालेकुम। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास, चेयरिंग क्रॉस 13 फरवरी 2017, जिसमें हमारे 2 सीनियर पुलिस अफसर SSP जाहिद महमूद गोंदल साहब और DIG CTO लाहौर कैप्टन मुबीन साहब। जो धमाका हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? जी उसकी बात कर रहा हूँ। 13 फरवरी 2017 6:10 पे हुआ था ये ब्लास्ट ना। फार्मास्यूटिकल वालों का एहतजाज चल रहा था, तो उधर पहुँचे हैं एहतजाज पे, तो जो था दरमियान में आ गया, ब्लास्ट कर दिया। मैं एज ए वायरलेस ऑपरेटर था गोंदल साहब के साथ, वक्ती तौर पे बेहोश हो गया उधर। पैलेट्स लगे हैं मुझे, कोई 650 पैलेट्स 600 पैलेट लगे आप? जी जी, लेफ़्ट फुट ड्रॉप हो गया मेरा। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी बख्श दी। महकमे ने बहुत साथ दिया। मेरा इलाज मुआवजा बहुत अच्छे तरीके, एहसन तरीके से करवाया। अगर मैं अपने तौर पे करवाता तो शायद मैं अपनी टांगों पे चलूँ। कोई ना ही उन्होंने बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा। मेरा नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस से इलाज करवाया है महकमे ने, और तकरीबन ये 1.5-2 साल का पीरियड था जिसमें न्यूरो का भी मसला था।
सीनियर डॉक्टर थे, उनसे खुद महकमे वालों ने बात करके तो मेरा ये सारा कुछ करवाया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं अपने पाँव पे चलने के काबिल। हाँ जी, अपने ज़रा चल के दिखाएं ज़रा। ये 600 पैलेट लगे इसको बम धमाके में, और बेहतरीन इलाज महकमा पुलिस की तरफ से इनको करवाया गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको दाखिल करवाया गया। वहाँ पर इलाज कितने माह चलता रहा आपका इलाज? तकरीबन 1.5-2 साल चला है मेरा इलाज। 1.5-2 साल इलाज चला है। लाखों रुपए लग गए होंगे, इसलिए आप चलने के काबिल हो गए हैं। मैं नहीं चल सकता था अगर महकमा मेरा साथ ना देता। शूज वो उतार, कहाँ पर पैलेट लगे थे वो जरा दिखा दें। यहाँ पे रखें पाँव। सारे पैलेट्स लगे हुए हैं। ये बम धमाके में मुतासिर हुए थे, जख्मी हुए थे, और इनके साथ एक DIG भी थे, SSP थे। ये SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद के ऑपरेटर थे, और जब ड्यूटी के लिए अफसर बैठ जाता है तो ऑपरेटर, उनकी नफरी, जो भी गार्ड होता है वो भी साथ होते हैं। तो उस धमाके में खुदकश बमबार ने जब खुद को उड़ाया तो ये भी ज़ख्मी हुए। लेकिन आज हमारे दरमियान ये मौजूद हैं, ये गाजी हैं, और हम इनके साथ हैं, महकमा इनके साथ है। इधर एक जब ये धमाका हुआ था मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मेरी ड्यूटी की रिप्लेसमेंट थी, इवनिंग शिफ्ट थी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, गाड़ी से अभी उतरता हूँ, तो अचानक मुझे जाहिद महमूद गोंदल साहब नज़र आते हैं, DIG कैप्टन मुबीन नज़र आते हैं। तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। अभी क्योंकि खबर लेनी होती है, सबसे पहले उनके पास जाना होता है। जो भी अपडेट होती है वो हम लेना चाह रहे होते हैं कि कोई अपडेट है तो हमें दे दी जाए ताकि हम उसको ब्रेक कर दें। जब मैं आगे बढ़ा, 2 कदम आगे गया था, तो पीछे से मेरे साथी रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया, आवाज़ दी, हमाद। मैं उसी कदम वापस चला, और जैसे ही मैं सलाम करने के लिए रिपोर्टर से मिला तो पीछे से धमाका हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी मिलती है, इनको भी मिली, मुझे भी मिली। मैं भी आज उनके साथ ही होता, लेकिन आज मैं गाजियों के साथ हूँ। तो ये स्टोरी आंखों देखा हाल है। तो हमने वहाँ पर देखा एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद थे, रोड ब्लॉक की हुई थी, तकरीबन 12-14 घंटे हो गए थे, ट्रैफिक ब्लॉक थी ऐसे ही। और शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन पुलिस के अफसरान, पुलिस की नफरी एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, और बम धमाके का शिकार हुए। तो वो आज हम में नहीं रहे। हमारे साथ महकमा पुलिस के जो एहलकार हैं, जो कि अब हिस्सा नहीं रहे, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के दौरान एक आंख का ज़िया कर बैठे हैं। आखिर ये आंख का ज़िया कैसे हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने आंख आपकी मुतासिर की? अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अरशद नंबर 3319। मैं थाना गुलशहरा ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। 15 ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫੌਰੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲਾ ਹੀ ਲਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ 4-5 ਦਾਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। जो कार्रवाई सी फिर महकमे ने की, उन्होंने हक च कार्रवाई। अपनी खुशियाँ और जश्न मनाते मनाते किसी की खुशियों से खेल जाते हैं, और ये भी मुतासिर हैं। हमारी गलती और हमारी कोताही की वजह से ये अपनी आंख से महरूम हो चुके हैं। अब एक आंख से ये देख सकते हैं।
तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं महकमा पुलिस आपके साथ क्या ताउन हाँ, करती है? मेरे साथ महकमा पुलिस ने बहुत अच्छा तावन किया है। गुलाम अब्बास डीएसपी साहब थे उस वक्त उधर, एसएचओ साहब थे। गुलाम अब्बास डीएसपी साहब तो फिर मैं जितने दिन रहा हूँ तकरीबन 10 दिन रहा हूँ, और रोज़ाना मेरे पास आकर 1 घंटा मेरे पास बैठते थे, मुझे मेरे साथ गपशप लगाते थे। मेरे एसएचओ साहब वो भी रोज़ाना आते थे। महकमे ने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया है माशाल्लाह। महकमे ने मेरा इलाज करवाया है, तो बहुत ही अच्छा तावन किया मेरे साथ में महकमा। मुझे अब भी 3 महीने के बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड में मैं रिटायर हो गया था 18 में, तो महकमा भी मेरे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहा है। पुलिस जवान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं मेरे साथ। ये अपनी आंख से, अपनी टांग से, अपने हाथ से और जिस्म के कुछ हिस्सों से मुतासिर हो चुके हैं। क्रिमिनल्स की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से जब फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये मुतासिर होते हैं। आज ये गाजी पुलिस जवान, लाहौर पुलिस के गाजी जवान हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी जो बीती है इनके साथ, जो ज़ख्मी तो हो गए ड्यूटी के दौरान, लेकिन इनकी फैमिलीज़ पर क्या असरात मुरतब हुए, क्या खुशी थी, क्या गमी थी, फिर वो दुख दर्द तकलीफ़ में मुब्तला हो गई। हामिद साहब, आपकी बीती क्या है? मैं रायगंज इज्तिमा पे ड्यूटी लाइन ऑर्डर के सिलसिले में गया हुआ था 2018 में मार्च के महीने में। तो उधर हम चेकिंग ड्यूटी कर रहे थे, मेन वॉक थ्रू गेट के सामने, सर स्वीपिंग कहते हैं, कर रहे थे। तो उधर एएसपी साहब ज़ुबैर साहब भी आए थे ब्रीफिंग के लिए। वो भी जख्मी हुए थे? जी, वो भी बहुत ज़ख्मी हुए थे उस ब्लास्ट में। तो उधर मौजूद थे, चेकिंग कर रहे थे। तो एक खुदकश बम ब्लास्ट आया जिसने अपने आप को, जब उसको रास्ता नहीं मिला आगे जाने का, उसने उसी तरफ से उड़ा लिया अपने आप को, जिसमें हम शदीद ज़ख्मी हो गए। फिर मैं तकरीबन 9-10 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा, उसके बाद घर चला गया। जो खुदकश बब्बार था, उसके जो साथी थे वो कुछ दिनों बाद पकड़े भी गए थे। जी, कितने पकड़े साथी थे, कहाँ रह रहे थे, पता था? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं मिला। इस बारे में नहीं। कुछ कहाँ मुतासिर हुए? मेरी दोनों टांगों में से बाल बेरिंग जो है वो आर पार हुए थे और पेट से आर पार हुए थे। ये दायां हाथ टूट गया था, तो काफ़ी तकरीबन मैं अपने पाँव पर आज भी खड़े हैं। बाद मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सका था। 3.5 आप किस थाने में ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, मैं थाने में ड्यूटी नहीं कर रहा। कहाँ कर रहे हैं? मैं अभी सिक्योरिटी डिवीजन में, सिक्योरिटी ड्यूटी में ड्यूटी? एसपी साहब हेडक्वार्टर के पास। हौसले तो नहीं आपके पास? नहीं, इंशाल्लाह आइंदा भी अगर कोई भी ऐसा मौका हुआ तो दरेग नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये पुरज़्म है। हमारे साथ और भी गाजी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना मैं मुनासिब समझूंगा। आप बताइएगा हारिस साहब, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे थे, फिर गाजी का दर्जा आपको मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 फरवरी की बात है। चेयरिंग क्लास में मैं ड्यूटी कर रहा था। एसपी साहब सिविल लाइन से अली रज़ा साहब, उनके साथ था मैं, और मैं उनकी वीडियो वगैरह जो होती है वो बना रहा था। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैं बिल्कुल कैप्टन मुबीन साहब और जाहिद गोंदल साहब के पास ही खड़ा था, और उनके चंद कदम के फासले पे गया था तो पीछे से ये ब्लास्ट हो गया। मेरे सर पे बेरिंग लगे थे, और अल्लाह का शुक्र है। मुतासिर भी हुआ होगा? जी, मुतासिर भी हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है जी, अब खड़े हैं आपके सामने हैं, हौसले बुलंद हैं, और नेक्स्ट आगे भी खड़े हैं और ड्यूटी करेंगे। बिल्कुल, गाजी जवान बदस्तूर अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ एक और भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, क्या हुआ था? कांस्टेबल मुशर्रफ सैन सर मेरा नाम, 13-175 सर मैं ड्यूटी ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਿੱਖੀ ਥਾਣੇ ਲਾਗੇ। गाड़ी ठीक नहीं थी आपकी? गाड़ी ठीक सी, इश्तिहार ये पकड़ के आ रहे थे। इश्तिहारी को पकड़ के वापस आ रहे थे? हाँ जी, लाल आ रहे थे सर। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ना सारा मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, बाजू सर हो गया। 4 मुलाजम शहीद हो गए थे, डाला उल्टा। ये कब की बात है? ये 14/4/2019 का वाक़या सर। तो मैं 2019 में आप एक इश्तिहारी को गिरफ्तार करके अपनी टीम के साथ, आप ड्राइवर थे, ड्राइविंग कर रहे थे? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे आ रहा सी, थाना सांदा मैं ताइनात सी, तो मैं ड्यूटी पे आ रहा सी। तो मैं सर टूल प्लाजे तो बह गया सर डाले च, तो एक्सीडेंट हो गया सर भिक्खी था। आपके जो पेटी भाई थे उन्होंने आपको लिफ्ट दी? जी। ऐसे ही है जी। और अंदर एक इश्तिहारी बैठा हुआ था? जी। तो सर वो 4 मुलाजम शहीद हो गए एक्सीडेंट च।
تو اشتہاری بچ گیا تھا؟ جنرل ہسپتال ہوش آئی ہے سر. ملزم بچ گیا تھا؟ ملزم بچ گیا سر. اچھا تو آپ بھی پھر زخمی ہوئے؟ سر میرے ریڑھ دی ہڈی. صرف آپ زخمی ہوئے، باقی سارے جان سے چلے گئے، شہید ہو گئے سر. تو سر میں 2-2.5 سال تو سر میرا بازو جڑی پسلیاں جڑیاں سر فریکچر ہو گئی ہیں. تو یہ ساتھ آپ کے وائف ہیں؟ یہ میری وائف ہے سر. میرا تاڑا مفلوج ہو گیا، کوئی بچہ بھی کوئی نہیں سر. ان کی وائف بھی میرے ساتھ ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس دکھ اور تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو متاثر ہو گئے، گاڑی میں بیٹھے، پولیس گاڑی میں ٹائر برسٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 4 پولیس ملازمین شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ زخمی ہو جاتے ہیں. تو آج یہ معذوری کی شکل اختیار کر گئے. بہت دکھ والی بات ہے. کس طرح اس حالات سے لڑ رہے ہیں آپ؟ محکمہ پولیس کے جو افسران ہیں، جو محکمہ پولیس کو یہ اپنا کئی عمریں دے چکے ہیں، محکمہ پولیس نے کیا کیا؟ محکمہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت مشکل میں ہیں. ہمارا سب کچھ انہوں نے علاج کروایا، لیکن ہمارا کوئی بیٹا نہیں، بچہ نہیں ہے. میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں اور انشاءاللہ ہمت اللہ تعالیٰ نے دی تو ان کے ساتھ. محکمہ پولیس کے جو افسران ہیں، ان کے مستقل علاج کے لیے کوئی کام آگے بڑھا؟ ان سے آپ نے مطالبہ کیا کہ ان کی صحت یابی کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں؟ جی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو تب مطلب کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی. اب 3 سال سے یہ کر رہی ہیں. کوئی فنڈنگ وغیرہ محکمے کی طرف سے ویلفیئر کے طور پر پیسے بھیجے جاتے ہیں؟ جی سر. پہلے جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا اس وقت ویلفیئر فنڈ ملا تھا ان کو. تو اب نئی جو کمانڈ آئی ہے، ڈی آئی جی آپریشنز احسن یونس اور ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز، جی ان کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جو غازی ہیں محکمہ پولیس کے، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جی. انہوں نے عوام کے جان و مال کو تحفظ دیتے ہوئے خود کو کرمنلز کے سامنے لے آیا اور عوام کو تحفظ دیا اور خود زخمی ہو گیا. آج غازی کے طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی غازی شہید بھی ہو چکے ہیں. تو محکمہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں، اب ان کی طرف سے انیشیٹو یہ لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو جو میکسیمم ان کی مدد ہو سکے وہ کی جائے، تعاون ہو سکے وہ کیا جائے. تو آپ آج ایس ایس پی مستنصر فیروز، ڈی آئی جی احسن یونس صاحب کے سامنے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم کیا یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی ہیلپ کی جائے. ان کو اپنا ہڈیوں کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا ان کا، وہ بھی کروانا ہے. ان کی والدہ بھی ضعیف ہے، ان کا بھی علاج ہونا ہے. محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران کی طرف سے غازیوں کو آج بلایا گیا اور ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وعدے بھی کیے جاتے ہیں اور پورے بھی کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور غازی اہلکار موجود ہیں. نوید صاحب، آپ کی سٹوری کیا ہے؟ آپ ڈیوٹی کہاں کر رہے تھے؟ کہاں پر آپ پھر متاثر ہوئے اور آج غازی کے طور پر یہاں پر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی، تو 24/7/2017 کو ادھر سے ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں پھاٹک سبزی منڈی کی ڈیوٹی گئی. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، منڈی ڈٹ رہی تھی. تو وہاں پہ ایک خودکش بم بار آیا، اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، جس کے نتیجے میں بال بیرنگ میرے جسم پر لگے. کافی زخمی ہوئے تھے. 6 جوان شہید ہوئے تھے میرے دوست، اور ایک اے ایس آئی صاحب شہید ہوئے تھے اور ایک سب انسپکٹر صاحب شہید ہوئے تھے. تو سر دائیں کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بال بیرنگ جسم میں موجود ہے. بال بیرنگ جسم میں موجود ہے. اس کے باوجود آپ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سر. محکمہ پولیس کے جو افسران ہیں انہوں نے بال بیرنگ نکلوانے کے لیے کوئی آپ سے رابطہ کیا کہ آپ کو ایڈمٹ کروایا جائے جی سر ہاسپٹل میں؟ جی سر، میں 1.5 ماہ ہاسپٹل میں رہا ہوں. پراپر ٹریٹمنٹ ہوا ہے. 2 سال گھر اپنا ٹریٹمنٹ کراتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب الحمدللہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ساری مدد دیتے رہیں گے. بالکل، آپ نے غازیوں کی کہانیاں سنی. ہر ایک کی اپنی ایک دردناک کہانی ہے. وہ جس مشکل سے، دکھ سے، تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی زبانی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. یہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں. محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو ان کے مسائل کی سرکوبی کے لیے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ
लाहौर पुलिस के अफसरान की तरफ से गाजियों को बुलाया गया, उनको ताउन करने के लिए, उनके साथ हर तरह से खड़े होने के लिए कहा भी गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब नए आने वाले अफसर होते हैं वो पुराने अफसर के जो काम होते हैं वो रोक देते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गाजी पुलिस जवान के जो लाहौर पुलिस में ड्यूटी के फ़राइज़ भी अदा कर रहे थे, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आज गाजी भी हो चुके हैं, इनके जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए और हर आने वाले अफसर को इनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये हमारा सरमाया है और अगर ये अपनी जानों का परवाह ना करते हुए गाजी हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो इनके अहले खाना के साथ भी हमें खड़ा होना होगा। तो नाजरीन, आज प्रोग्राम थानेदार की टीम बनी है पुलिस के गाजियों की आवाज़, और ये आवाज़ हमने रिकॉर्ड करके अफसरान के सामने भी रख दिया और इनकी आप बीती आपके सामने रखी है कि हमें इनके साथ, लाहौर पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ ताउन करना होगा और इनकी खिदमात को बुलाए ताक रखते हुए इनके साथ खड़े होना होगा। फिर ही हम अपने जो मुहाफिज एहलकार हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ा पाएंगे। अगर हम इनकी इज़्ज़त करेंगे तो हर आने वाला शहरी भी इनकी इज़्ज़त करेगा, इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। तो यकीनन पुलिस के जवान जो ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स के साथ मिल जाते हैं, और जब ये गाजी जो पुलिस जवान इन तक ये बात पहुंचती है कि ये भी कहीं ना कहीं मामला तय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आवाम के, मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की परवाह ना की। और पुलिस जवान जो क्रिमिनल्स का साथ देते हैं उनको भी सोचना होगा कि इनके तदारक के लिए इक़दामात उठाने होंगे। जब तक हम क्रिमिनल्स का मुकाबला नहीं करेंगे तो हम अपने शोहदा का और गाजियों का हिसाब नहीं लेंगे क्रिमिनल्स से, तो फिर हम ड्यूटी नहीं कर रहे। तो लिहाजा तमाम पुलिस जवान जो मुझे सुन रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं थानों में, दफातर में, उन्हें अपना काम खुश उसलूबी से और मेहनत से करना होगा, क्रिमिनल्स को नकेल डालना होगा, फिर ही हम खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।